इन द मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछिए. एक लेडी क्वेश्चन कर रही थी, बट मैं उस टाइम पे उनको जवाब नहीं दे पाया था. Yeah, I also have a question. Yeah, please go ahead. Yeah, very nice and very informative session. I really enjoyed it. I mean, very practical. But it raised one doubt in me. आपने बोला कि बच्चे को ऑब्जर्व करो, उनका चेंज लाओ about the behavior and various other things. So what we have read in the past, we have some preconceived notions or opinions about caste, sect, creed, race, gender. Okay, so a person of this type, the behavior is of a particular pattern now. So that is all a fallacy, is it? Yeah. No, I have not been able to understand your question. Though I understood your appreciation, but not understand the question. Yeah. So I have say you're an Indian, you're an American, you're an African, you're a Gujarati, Marwadi, Punjabi, Sindhi. So is a preconceived notion what we have read, what you have heard, that this is going to be a behavior, this is a particular behavior of this person will be. Yeah. So, but when we after attending this session, the understanding is everyone's behavior can change. So this preconceived notion or opinion about people, that is a fallacy, isn't that? Yeah, you see, it is your personal opinion. Right? Yeah. It is not based on I would say facts. This is the stamping which is done by society. You are a Hindu, you are a Muslim. बच्चा पैदा होता है, उसको stamp लग जाता है. And similarly caste, and similarly nation, right? Similarly skin color, similarly even sex. ये तो मर्द है, ये तो औरत है, ये ऐसे ही होगा. That. Fine. So yoga is to come above all that. You see, that is why I was talking about Sankhya and the model of creation. There's an element called Ahankar. Ahankar is where the individual element works. And above that is the Mahad, the Buddhi, which is the universal element. So mostly, huge majority of people are operating in the individual element, the Ahankara element. But some are able to break that barrier. That barrier has been put by nature actually. It is something which is there inborn in us. So that is broken intentionally through practice, through spiritual practice, through yogic practice, through gaining knowledge. You burn the earlier sanskaras and then you go up. And it does not stop there. It does not stop at the Mahat or the Buddhi level. It goes up to the Prakriti level. It goes further up to the Purusha level, to the Ishvara level. So one can keep on going up and up and up. And that is precisely what we need to understand. That framework of what is happening out there and how it is impacting me. And once when you realize that it is actually you we are talking about, and how to move so that you are able to raise your consciousness by understanding the science behind it, by understanding the process behind it, and not in the practice. I'm saying understanding the science, understanding the process, then the practice will come automatically. Right. So the other follow-up question, the follow-up question is then, so if you're born in a particular caste, creed, sex, gender, country, do they have any advantage which is preconceived that, okay, if you're from this race, you'll be more intelligent, or if you're from this race, you're more hardworking, or, is that then, or everything can be, then if you practice what you have said, you are on the same plane there. You see, there are, you must understand one thing. Whatever is recorded inside my brain as memory will eventually turn out to be my reality. Okay, this is what yoga says. Right. This is what sanskaras are all about. So sanskaras become karmas. And now the sanskaras can be formed because of genetic reasons, because of environmental reasons, because of cultural reasons. So it could be because of anything. The cause could be anything, but the end effect would be a sanskara. And the sanskara is there, the result will come.
Sanskara becomes the cause, so the corresponding effect will come. But that is not the point. Point is we have to grow beyond our limitations, and we are limited because we are ignorant about who we are. We really do not know who we are. We do not know our own circuit diagram. So once when you understand the Sankhya circuit diagram of who you are, which encompasses the entire creation, you are at the center of that creation. In fact, the moment you are born, your creation comes with you, and the moment you die, your creation is gone. So the creation is coming because of you, and the creation is going because of you. Are you getting me? Right. So you are at the center of your creation. So you need to understand that. Our Westerner friends think we are some isolated speck of dust somewhere in this creation. That is the biggest stupidity they are doing. My creation is taking birth with me, and my creation is ending with me. And I am the superstar of my creation. Whatever I think happens. Whatever I see becomes reality. Whatever I don't see is not reality for me. So I am the center of my creation. I am the driver of my creation. Once you understand these ancient wisdom of our country, then you will feel powerful. Right. They have intentionally killed it so that we are cut off from our ancient wisdom supply. And we are a drifting community, a drifting nation. Our children today are running to US for jobs, for education. Right. It should have been the other way around. Yes, because nobody is talking about where the real power is. Right. They think power lies in their qualifications. They think power lies in working for an MNC like Google, So they are breeding grounds of sorrow. Right. So now it becomes our responsibility, people of this country who are understanding this, who know this, who are putting it into practice in their lives. It becomes our responsibility to spread the word. It is just not our wisdom. Our children are getting cut off from even the concept of God. They have their own understanding. So we are going through a crisis actually, and it is high time we pull back our socks. And let me tell you, in today's world where there is tremendous change happening, technology change has speeded up like anything, and it will go further quicker in days to come. The first thing which will get off track is the mind, and it is happening. It is showing in mental health figures worldwide. And the only technology which can bring the mind to rest is yoga. Not the asana wala yoga. That is body gymnastics. It is the mental yoga where you actually follow yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharma, and go into dhyan and go into samadhi and then go further up. Yeah, thank you. Very well answered. Welcome. Yeah. Good morning, sir. Good morning. I'm not able to see you. कौन है? Seema. हाँ बोलिए. Sir, physical yoga also help us? Physical yoga is a minor stream. It is not meant for everybody. जैसे it is more to keep the body fit. It is, you see, if you look at Patanjali is a master in this. He has written 196 sutras, out of which only 3 sutras are on asana. So if asana would have been all that important, he would have written 100 sutras on asana. Why 3? And he has not mentioned any asana by name. He says, sit in a position in which the body is comfortable and the mind is steady. That's all. क्योंकि मेरा पर्पस बॉडी को पार करके माइंड पे काम करने का है. अगर बॉडी मेरे को डिस्टर्ब करेगी तो मैं माइंड में कैसे घुसूंगा? तो वो बोलता है कि
इजी पोस्चर, कंफर्टेबल पोस्चर, जिसको आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना देर भी आपको मेडिटेट करना हो उतना देर आप बॉडी को वहां होल्ड कर सके. बॉडी मस्ट नॉट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन दिस पाथ. बॉडी मस्ट डिसअपियर फ्रॉम द पाथ. सर चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पे स्टडी करने के लिए कौन सा कुछ मटेरियल्स आप हेल्प कर सकते हैं जो जिस पे अभी स्टडी किया जा सके? नहीं, मेरे को नहीं मालूम. मेरे को मेरी एक स्टूडेंट है बैंगलोर में, उसने अप्रोच किया, मेरे को गाइड करिए ऑन पेरेंटिंग यूजिंग पतंजलि योग सूत्रास. तब बैठ के मैंने सोचा, थोड़ा खोजा, और मुझे लगा कि यही बेस्ट तरीका है कि पेरेंटिंग क्या है, बच्चे के कॉन्शियसनेस को ऊंचा करना, बच्चे के गुडनेस को बढ़ाना. इसके बारे में और सीखना हो, जानना हो तो? नहीं, मेरे मन में है, अभी विचार है, बहुत ज्यादा क्लियरली फॉर्मुलेट नहीं हुआ है इस पे एक कोर्स बनाने के लिए. वो मेरे को निधि नाम है बैंगलोर से जिसने कांटेक्ट किया था, वो भी मेरे को बोली सर एक कोर्स बनाइए, बहुतों को जरूरत है इसकी. सर सच में मेरे आसपास तो बहुत मैंने ऐसा देखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी उस कोर्स का पार्ट बनना चाहिए. अब जो मुझे एक विजन मिल रहा है कि मुझे कुछ करने के लिए, ओके, ये टॉपिक मुझे बहुत वो लगा, विजन मिल रहा है कि कुछ करने के लिए. ओके, तो ठीक है, मैं इसके बाद में आपसे एक दिन बात करता हूँ कि ये इसका टाइम लिमिट्स क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, क्योंकि एज अ मदर आपका एक्सपीरियंस है. मेरी वाइफ तो मेरे को कल बोली, मैंने कहा पढ़ो, तो बोली यार तुमने तो पेरेंटिंग की नहीं है, तुमने क्या आर्टिकल लिख दिया है. तब उसको बोला तुम पढ़ो तो भाई. तो उसने पढ़ा, बोले अच्छा लिखा है लेकिन मेरा स्कोर तुमसे ज्यादा है. बोला ठीक है, खुश रहो. तो आप गाइड करिए कि जो एक्चुअली मदर को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, आपके क्या चैलेंजेस हैं, और उसको उस पर बेस करके बनाते हैं कोर्स. कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस सर मोड आज में मैं होना ये चाहिए. जो आपने दिया ना, मैं आज खुद के लिए एक पेपर बना रही हूँ और मेरे दोनों बच्चों को, और मेरे पास 2 बच्चे और आते हैं, उन चारों को दे रही हूँ, देखते हैं क्या रेटिंग आती है. ओके, मुझे नहीं ये हम लोग एज अ नहीं, गेम भी बच्चों को करने वाली हूँ. हाँ, नहीं हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो राइटअप है ये मेरे पास वर्ड फाइल में, हम लोग ग्रुप्स में डाल देंगे, तो आपको वर्ड फाइल में पूरे वो 9 मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिल बच्चों को जाएगा. थोड़ी देना, वो हमको असेस करना है ना, नहीं, आपके लिए बोल पेरेंट्स रहा को हूँ. असेस करना है. पेरेंट्स को भी करना है, बच्चों को भी देना है कि अपने आप को रेटिंग करें. वो अच्छा बच्चों से सेल्फ रेटिंग कराना चाहती है. यस, बच्चों से अच्छा भी अच्छा. मैं खुद का भी करने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड का भी करने वाली हूँ, और मतलब हम चारों का करके फिर मैच करेंगे क्या होता है. और उसमें क्या है, इनको मालूम पड़ेगा कौन कितना ऑनेस्ट भी है. हाँ जी. नहीं, ये सच, आज का टॉपिक ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. देखिए, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ. आप लोग आते हैं, ये टॉक सुनते हैं, मैंने रियलाइज किया कि पतंजलि योग सूत्रा के थ्योरी देने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझाना होगा. ओके, तो पिछले 7-10 दिनों से उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि ये साइकोलॉजी की बाइबल है. ह्यूमन साइकोलॉजी का इसके ऊपर संभव नहीं है. एक ऑर्डिनरी आदमी, एक लेबरर को आप क्रिया योग चालू करा के अष्टांग योग में डाल के आप सिद्धियां करा देते हैं, मुक्ति करा देते हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. और फिलॉसफी भी इतनी डीप, इतनी वाइड, इतनी रैशनल, इतनी स्ट्रक्चर्ड है, माइंड बॉगलिंग है. थैंक यू सर. अभी एक कोर्स रेडी कर रहे हैं उडेमी के लिए, वो है ऑन पतंजलि योग सूत्रस फॉर पीपल हु आर स्ट्रेस्ड. क्योंकि कुछ लोग बोले कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लोगों को स्ट्रेस है, और स्पेशली कोरोना को लेके है, जॉब्स को लेके है, सोसाइटी प्रेशर्स को लेके है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है. तो वो भी एक कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीना में वो भी रेडी हो जाएगा. तो वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, कि ये नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो हम लोग को काफी इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नई सोच लानी पड़ेगी, ताकि ये पावरफुली और इफेक्टिवली लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करे. ये जो पेरेंट वाला है, ये मुझे लगा कि हाँ, इसमें एक प्रोग्राम बन सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बन सकता है, और बहुत कुछ किया जा सकता है. या एनी अदर क्वेश्चन? सर नमस्ते.
नमस्कार, सॉरी आपको उस टाइम में मना कर दिया, प्लीज बोलिए आप। नहीं, कोई बात नहीं सर। आपने कहा कि बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता, बाहर आके सब कुछ सीखता है। तो मैंने तो ऐसे सुना है कि जन्म जन्म के संस्कार हमारे साथ रहते हैं। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ऐसा है कि बच्चा माँ के पेट से क्या क्या सीख के आता है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, बॉडी के फंक्शन सीख के आता है, पूरा का पूरा 10 सिस्टम्स हैं वो सीख के आता है। वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, वो उसके चित्त में स्टोर रहता है। दूसरा क्या सीख के आता है, दूसरा पुराने जन्मों के संस्कार लेके आता है। वो कहाँ रहता है, वो भी उसके चित्त में स्टोर रहता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा उसको ईश्वर ने 5 इंद्रियां दे दी है। बोला भैया जो लेके आया है ना वो तो ठीक है, यहां से भी ले। तो वो 5 इंद्रियों से लेता है, आंखों से लेता है, कान से लेता है, जीवा से लेता है, नाक से लेता है और चमड़ी से लेता है। ये भी स्टोर होती है। कहां स्टोर होती है, चित्त में स्टोर होती है। तो ये 3 स्टोरेजेस है। एक चित्त में वो जो शरीर को चलाने के लिए है, जिसको वो छेड़ नहीं सकता है। दूसरा संस्कार जो कि अपने आप कर्म बन के बाहर निकल जाते हैं। और तीसरा जो 5 इंद्रियों के द्वारा अंदर लेता है, वो नए संस्कार बनाते हैं। तो ये जो 2 हैं, जो संस्कार लेकर आया और जो संस्कार बन रहे हैं। अब जो संस्कार बन रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि जो घुस रहा है वही बन रहा है, नहीं। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ देखा, सुना, अंदर गया और कुछ समय के बाद उसमें से एक विचार पैदा हुआ और वो जाके संस्कार बना। आप समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं ना, जो वृत्तियां आती हैं, जहां पे मन का स्थिति चेंज होता है, जहां पे रिकॉर्डिंग होने लगती है। सब चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं सड़क पे चल रहा हूँ, पेड़ कहीं है, गाड़ियां कहीं है, सड़क दिख रही है, आकाश दिख रहा है, लेकिन सब रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहां मेरा मन अटकता है जाके, जहां मैं नोटिस करता हूँ, वो रिकॉर्ड होता है। और जो रिकॉर्ड होता है मतलब मेरे माइंड का मानसिक स्थिति चेंज हुआ, वहां एक फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड हुआ, वो वृत्ति है। अब वृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक वृत्ति वो होती है जो कि ज्ञान से है, जो भी मैंने कुछ देखा, सुना, समझा है वो है। एक वृत्ति होती है जो कि मेमोरी होती है, पास्ट की। एक वृत्ति होती है जो कि इमेजिनेशन से आती है, मैं कल्पना कर रहा हूं और मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है। एक वृत्ति वो होती है जो रात को नींद में सपने में आती है, सपने में कुछ देखा हमने, ना। तो ये 5 वृत्तियां हैं। जो पहले मैंने आपको ज्ञान का बताया, वो 2 प्रकार का माना जाता है, सही और गलत ज्ञान। हम कुछ गलत ज्ञान भी ले लेते हैं, हम कुछ भ्रम में भी आ जाते हैं। तो ये 5 हैं। तो ये जो 5 हैं, ये 5 अंदर से पैदा कर रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है, दोनों का मिश्रण होकर संस्कार बन रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है पहले तो जो पुराने संस्कार है उनको हटाने का। दूसरा है जो हम दुनिया से ले लिए हैं उसको हटाने का। अब जो दुनिया से ले लिए हैं और जो पुराने लाए हैं, उसमें हमको पहले ये समझना है कि कौन से हमारी चेतना को चढ़ा रहे हैं ऊपर और कौन सी गिरा रहे हैं। जो गिरा रहे हैं उनको हमको हटाना है, जो चढ़ा रहे हैं उनको हमको बढ़ाना है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ईश्वर प्राणिधाना कर रहे हैं, वो हमको चाहिए। और जो हमारे योग के मार्ग में बाधा है, जैसे अविद्या है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, मतलब फियर ऑफ डेथ है, उन सब से हमको मुक्ति चाहिए। तो ये कांस्टेंट एक वर्क है और जैसे जैसे हम इस पे वर्क करेंगे, हमारी सृष्टि बेहतर से बेहतर बनने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम सृष्टि में लीन हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम सृष्टि को पार करके निकल जाते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है। ये हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिकन और यूरोपियंस के खोपड़ी के बाहर की चीजें है। उनकी सभ्यता ही नहीं थी तब जब से हम ये कर रहे हैं। अमेरिका को 300 साल हुए, 400 साल हुए। तो क्या है उनका ज्ञान? लेबोरेटरी का ज्ञान है उनका। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है।
अब आप देखिए गौतम बुद्ध, इनको भी 2000-2500 साल हुआ है, और ऋग्वेद कब लिखा गया? उनके भी 2500 साल पहले। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो जो स्टार्टिंग का जो ज्ञान है ना, बहुत प्योर है, उसके बाद वो बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया, अब पूरा बिखरा हुआ है। तो हमको बैक टू ओरिजिनल जाना है, जो ओरिजिनल ज्ञान है, जो ओरिजिनल एसेंस है, जो उसका मर्म है, उस पे जाना है, वहां से अपनी जर्नी वापस चालू करनी है। ओके, बराबर। आपको अगर इसको गहराई में समझना है, जड़ में जाके, तो जो सांख्य का कोर्स हम कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो करिए। अगर आप इमीडिएटली कर पाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जनरली 5 हफ्ते में एक बार रिपीट करते हैं, तो हर 5 हफ्ते के बाद चेंज होता है। हम लोग 5 कोर्स करते हैं। एक करते हैं सांख्य पे, एक करते हैं समाधि पे, एक करते हैं अष्टांग पे, एक करते हैं सिद्धियों पे, और एक करते हैं मुक्ति पे। तो अभी जैसे ये अगले हफ्ते सांख्य है, तो वापस 5 हफ्ते बाद फिर सांख्य आएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Yeah, any other question? अगर क्वेश्चन नहीं हो तो हम लोग फिर क्लोज करते हैं। हाँ सीमा जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, बस वही सब सोच रही थी कि आगे एक विजन दिख रहा है अभी मुझे, उसी के लिए सोच रही थी। नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए ये हर परिवार को चाहिए। सर अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, बहुत बहुत अलग है। अभी वो समझ में आ रहा है कि बेस बचपन से ही वो चीजें वैसे हो रही है, और फिर हम गलती बच्चों को बोलते हैं। देखिए कल ये चीज समझ में आ रही है अभी। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ। कल मेरे कॉलेज का, मैंने इंजीनियरिंग करी है आरएसी भोपाल से, तो हमारा कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो किसी ने पोस्ट किया, एक 2 या 2.5 साल का बच्चा खड़ा था वहां पे, उसके शायद फादर या कुछ सीनियर लोग बैठे थे, वो ड्रिंक्स ले रहे थे। तो बच्चे ने भी आके इनोसेंस में एक ग्लास को छुआ, ग्लास भरा हुआ है, बाकी लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं, उठाओ उठाओ, और वो बच्चे ने उठाया, अपने मुंह में लगाया और 2-3 सिप भी मारा, और वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब उनकी आवाजें आ रही है बैकग्राउंड। उसके बाद में बच्चे ने उस ग्लास को रखा, वहां कुछ नमकीन पड़ा था, फिर देखा किसी की तरफ, फिर उसने वो नमकीन में हाथ डाला, उठाया। ये 20 सेकंड का या 22 सेकंड का क्लिप था, और खत्म हो गया। अब हम बोले, बताइए कि आप 2-2.5 साल के बच्चे को इस तरह का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस करा रहे हैं और उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उसकी जिंदगी के साथ आप? और जो लोग बैठे हैं वहां पर, उनकी चेतना का लेवल क्या होगा, उनका कॉन्शियसनेस लेवल क्या होगा? तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी चीज है अपने। लेकिन जो भी प्रोग्राम करेंगे वो ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा कि यंग जनरेशन को अपील करे। हमारी भाषा में नहीं चलेगा, उनकी भाषा में, उनके तरीके से चलेगा, ये तब उनको इन्फ्लुएंस करेगा। इसके लिए सर मुझे आप अपनी टीम में ज्वाइन कर लीजिए। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल का कोर्स तो मैंने पार्टिसिपेट किया है इसमें, कल के इसमें। हाँ 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 हाँ। इसके लिए मुझे कुछ सर्च करना है, कुछ बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे वो एक आध नाम बता दीजिए जिससे मैं स्टार्ट करूं। कौन से बुक के लिए बोल रही हैं? जिससे ये चीजों का नॉलेज मुझे बढ़े, कुछ अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं, हम आपको एक सिंपल बात बोलते हैं। सबसे बड़ी बुक आप हैं। आपने बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों को ऊंच नीच करते हुए देखा है, आपसे बढ़िया बुक कौन है? आपको अपने अंदर जाना होगा। ये अंदर की जर्नी हम लोग नहीं करते हैं ना, हम लोग बाहर का ज्ञान लेते हैं। बाहर का ज्ञान झूठा ज्ञान है, डिकेइंग ज्ञान है। ज्ञान भी डिके होता है, ज्ञान भी सड़ता है, और जो आपके अंदर से निकलेगा ना, वो सदा के लिए चमकता रहेगा।
पहले मुझे सेल्फ अपने ऊपर काम करना है। हाँ, और ज्ञान आपको अंदर से खोद के निकालना है। जितना आप अंदर जाना सीखेंगे उतना आपका जीवन खुशहाली से बढ़ने लगेगा। जितना आप बाहर जाएंगे उतना जिंदगी में कचरा आने लगेगा। बाहर कचरा छोड़ के कुछ नहीं, बाहर सिर्फ फुसलाने की चीजें हैं। बाहर बहुत बड़ा धंधा है बंदर को फंसाने का। लेकिन सर रहना तो इस बाहर की दुनिया में भी पड़ता है ना। बाहर की दुनिया में रहते हुए बिना चिपके हुए रहना है ना, च्युइंगम की तरह नहीं चिपकना है। जैसे वो कहते हैं ना कमल और पानी वाली जो एग्जांपल देते हैं, वैसा रहना, टेफ्लॉन की तरह रहना है। रहना भी है और नहीं भी रहना। तो आप वैसा कब रह सकते हैं? जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो, अपने ऊपर पावर, तब आप चिपकने नहीं देंगे। अगर आपका अपने ऊपर पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी चिपक लेगा। हमारे जीवन में होता है, लोग आगे चिपक लेंगे आपसे। आपके आप में पावर रहेगा तो नहीं चिपकेगा और दूर हो जाएगा। कल रात में मुझे 1:30 बजे एक लेडी का कॉल आया। मैं इसको जानता नहीं। बोला मैं सुसाइड करने वाली हूं, मेरे को हेल्प करिए। अभी मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। तो फिर उसने कोई रेफरेंस दिया और मैं बात किया बैठ के उससे। अब मेरे को अपना स्पीकर फोन ऑन करके बात करना पड़ा। मेरी वाइफ थी रूम में। मतलब किससे बात कर रहा है रात में 1:30 बजे? मैं कहा ये भी सुने कम से कम, इसका मन शांत रहे। मेरी वाइफ सुनी, उसके बाद बोली बंद करो, तुम डायरेक्ट बात करो, मेरे को नहीं सुनना है। ठीक है। तो अब आप सोचिए लोगों का क्या डेस्परेशन लेवल आ जाता है। तो माइंड के ऊपर कंट्रोल सबसे क्रिटिकल है। आपके पास हो सकता है कि 200 करोड़ की गाड़ी हो, आपको स्टीयरिंग संभालना नहीं आता है तो क्रैश लैंडिंग है। वो हो सकता है आपके पास 1000 रुपए की साइकिल हो, आपको उसका स्टीयरिंग संभालने आता है तो आप यहां से बंबई जा सकते हैं। संजय जी बोलिए सर। आपने बोला ध्यान में जाने के लिए जप और प्रार्थना करने से और इजीली जा सकते हैं। देखिए आपको ये समझना होगा कि ये साइंस क्या है। ओके, आते हैं साइंस पे। साइंस ये है कि हमको अपने ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को, मेमोरी सेल्स को डालना है। और जो भी मेमोरी सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर होंगे उसकी करस्पॉन्डिंग रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड में बाहर होगी। ओके, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अच्छा, अब अगर आपने जप किया तो आप रिपीटेशन कर रहे हैं। जब आप रिपीटेशन कर रहे हैं तो एक शब्द या एक ग्रुप ऑफ शब्दों को आप अपने ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक मेमोरी सेल बना, फिर उसका 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर 10 करोड़ हो गया। अब हमारे पास अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। उसमें से अगर आपके 10 बिलियन न्यूरॉन्स उस जप वाले हैं तो क्या होगा? वो रियलिटी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और सिर्फ आपके सामने नहीं, सृष्टि के सामने। क्योंकि हम सब सेम सृष्टि में हैं। प्रकृति एक ही है, आत्माएं अलग अलग है। तो ये एक टेक्निक हो गया। जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में आप क्या करते हैं? प्रेयर में आप शब्द बोलते हैं इमोशन के साथ। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप डे 1 को प्रार्थना 1 करेंगे, डे 2 को प्रार्थना 2 करेंगे, डे 3 को प्रार्थना 3 करेंगे, डे 4 को प्रार्थना 4 करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे। आप एक ही प्रार्थना लेके घुस जाएंगे। तो वो भी रेपिटेशन है, इमोशन के साथ, सही जगह पर, सही वातावरण में, सही माहौल में, जहां पर कॉन्शियसनेस लेवल ऑलरेडी हाई है, मंदिर में या पूजा की जगह पर। नहा धो के आप आए हैं, शरीर का मैल निकाल के आए हैं, आपका कॉन्शियसनेस लेवल हाई है, आपका बॉडी की क्लीननेस हाई है।
आप प्रॉपर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर इमोशन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, शायद समर्पण भावना के साथ प्रयोग कर रहे हैं, चाहे शायद एक भिखारी की तरह मांग रहे हैं अपने आप को फुल्ली सरेंडर करके कि हे प्रभु मुझे ये दे। नानक का एक प्रेयर है जो नानक बोलते हैं ईश्वर से कि मैं तो एक भिखारी हूं, तू मुझे सिर्फ एक आशीर्वाद दे दे बस। मैं तो ठहरा भिखारी, भीख मांगने वाला, एक आशीर्वाद दे दे बस। क्योंकि तेरे से मैं मांगू तो क्या मांगू, जो भी मैं तेरे से मांगूंगा वो टेम्पररी होगा, वो चलेगा नहीं ज्यादा दिन, वो खत्म हो जाएगा। तो तू मेरे को कुछ मत दे, मैं तो पैदाइशी भिखारी हूं, तू मेरे को सिर्फ अपना एक आशीष दे दे बस। तो ये भी एक प्रार्थना है। तो जिस चीज को आप इमोशन के साथ बार बार बोलते हैं वो भी जाके न्यूरॉन्स में सेल्स ज्यादा बनते हैं और वो फिर रियलिटी होने लगती है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सृष्टि जो है ये एक लिविंग कॉन्शियसनेस है, ये कोई मैटर की दुनिया नहीं है जैसे कि हमारे साइंटिस्ट समझते हैं कि सोलर सिस्टम है, सन है, मून है, अर्थ है, इतने स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, इतने गैलेक्सीज हैं। बेवकूफ है ये। उनको शरीर का दिखता है, उनको ऑब्जेक्ट दिखता है, उनको सब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो ये पूरा एक लिविंग कॉन्शियसनेस है। और जब आप वो सांख्य का वो 25 प्रिंसिपल समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति का चाबी आपके हाथ में है। प्रकृति बनी ही इंसान के लिए है, इसलिए जब आप आंख खोलते हैं प्रकृति सामने रहती है, आप आंख बंद करते हैं प्रकृति चली जाती है। प्रकृति है ही आपके लिए, लेकिन आपको प्रकृति से काम कराना नहीं आता क्योंकि किसी ने आपको सिखाया ही नहीं, किसी ने आपको बोला ही नहीं कि प्रकृति आपके लिए। पतंजलि बोलता है, सूत्र है कि आपको प्रकृति से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, प्रकृति बाध्य है आपको मुक्ति देने के लिए। और आनंद चाहिए, प्रकृति आपको आनंद देगी। जिस प्रकार का आनंद चाहेंगे उस प्रकार का आनंद देगी प्रकृति आपको। प्रकृति आपके लिए है, प्रकृति को जरूरत क्या आने की। अब ये तो कोई समझाता नहीं है हमको। अब आप एक बार समझ लीजिए इसको और जीवन में उतारिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा। जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारी क्रिएशन होगी, क्योंकि हमने क्या देखा, कॉज एंड इफेक्ट। जो इफेक्ट हम चाहेंगे वैसा ही कॉज पैदा हो जाए। अभी जो साइंटिस्ट देखना चाहते हैं ना वो उनको दिखता है, क्योंकि ये माया है, इल्यूजन है। आप जो चाहोगे वो दिखेगा, प्रकृति लाके खड़ा कर देगी आपके सामने। आप बोलोगे बोसॉन पार्टिकल चाहिए, वो खड़ा कर देगी, किसी जोकर को बोलेगी ये बोसॉन है, आप बोलेगे वाह 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 बोसॉन आ गया, नोबेल प्राइज मिल जाएगा उस बंदे को। तो ये पूरा ज्ञान इस देश का है। और पतंजलि क्या बोलता है कि सबसे बड़ी बाधा आपकी अविद्या है, आपकी इग्नोरेंस है। आप जानते नहीं हो कि आप कौन हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया आपके साथ। सिर्फ ये जान जाओ तुम कौन हो, तब तुम्हारे जीवन में सब होने लगेगा। हम यही नहीं जानते हैं। थैंक यू। मैं देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेसिक लेवल पे ये जो सांख्य का कोर्स है ना ये कर लीजिए। ये आपके जीवन के सारे जितने भी स्पिरिचुअलिटी आपने सुनी हो, समझी हो, जानी हो, सबको जोड़ देगा। इसके मैजिकल इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ पिकअप किया है लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीके से पिकअप नहीं किया है। वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है हमारे समाज में जो हमको उस तरीके का नॉलेज दे। हमने कट पीस में यहां वहां से पिकअप किया है और कट पेस्ट करके बनाया है अपना अंडरस्टैंडिंग।
तो जब आप ये सांख्य को सुनेंगे तब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि सांख्य के फाउंडेशन पे सब खड़ा है। आपको फाउंडेशन किसी ने समझाया ही नहीं। हर कोई ऊपर की इमारत दिखा रहा है, ऊपर का फ्लैट दिखा रहा है। आपने 2 फ्लैट यहां ले लिए, 4 फ्लैट वहां ले लिए, बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फाउंडेशनल है, मतलब चमत्कारी है। हम तो सोचते हैं कि ये पतंजलि योग सूत्र भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ सांख्य करना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं बात कि लोगों को सिर्फ सांख्य समझा देना, वो क्रिएशन का मॉडल, तो ही बहुत कुछ हो जाता है। तो ये हमको अपनी जगह नहीं मालूम है, हम हॉरोस्कोप पे चल रहे हैं, है ना, कि मेरे ग्रह कहां पे। अरे भैया, ग्रह भूल जाओ, तुम देखो तुम्हारे 25 प्रिंसिपल्स क्या है, 25 तत्व क्या है, 25 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है जिसके अंदर तुम हो, और जो तुमने क्रिएट किया है। तुम कहां से आए हो, अब तुमको कहां जाना है, पूरा पाथ उसमें है। हम लोग बाय नेचर, बाय एवोल्यूशन डायरेक्टली दुनिया में आ जाते हैं। हमारे सामने पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है, वो 5 इंद्रियां खड़ी हो जाती है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश दिखने लगता है, सब हो जाता है। यही पीड़ा का कारण है। यहां से रिवर्स जाना है। अभी एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि एक बैट्समैन बैटिंग करने आ गया और सामने पेस बॉलर्स हैं और बाउंसर पे बाउंसर दे रहे हैं उसको, तो क्या वो बैट्समैन कंफर्टेबली रह सकता है वहां पिच पे? नहीं रह सकता है। लेकिन जब वो वापस आता है पवेलियन में, तब वो रेस्ट में है। तो हम लोग भी क्या है ना, हमको धक्का देके निकाल दिए गए पिच पे, और हमको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है पेस बॉलर को हैंडल करने की। वो बॉल हमको ऐसे लगते हैं जैसे 300 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रही है। ये वो ट्रेनिंग है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं गुंजन बोल रही हूँ, अंशुमान सिन्हा के विंडो से। ओके, बोलिए। सर, मेरे बच्चे में एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, जबकि घर का इन्वायरमेंट मेरे हस्बैंड का काफी हम लोग सेटिस्फाइड हैं। हम लोग उसे संतोष नहीं होता है, एक जो सिंपल वर्ड में बोले, जो भी कुछ है उसके पास उसको लगता है कमी है। मतलब चाहे वो हम रुकिए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपके बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं है ना? हाँ। बस, तो बच्चे ने इसी को पिक कर लिया। आप सेटिस्फाई हो जाइए, आप संतोष में आ जाइए, आप देखिएगा आपका बच्चा संतोष में आ जाए। मतलब हम लोग उसे कुछ भी ला के दे दे, उसे लगता है कि ये बहुत कम कीमत का है, दूसरे बच्चे के पास ज्यादा है। और हम लोग इससे इतना ज्यादा परेशान हैं कि मतलब उसके हर चीज में है। मेरे पास ये नहीं हो सकता, ये आएगा ही नहीं, तुम दोगे ही नहीं, मेरे नंबर नहीं आ सकते, जबकि अच्छा स्कॉलर है, माइंड अच्छा है, बट वही सेटिस्फेक्शन हर जगह उसका नहीं। मेरे को आप एक बात बताइए, उसके लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे? उसके मार्क्स सर 70 से लेके 90 और क्या 100 तक आते हैं। पर किसी दिन मूड है तो वो पेपर अच्छा हो जाएगा, मूड नहीं है तो पेपर खराब हो जाएगा। हाँ, तो आप उसको टोकती हैं क्या? नहीं समझा सर। आप उसको टोकती हैं क्या? आप उसको पॉइंट आउट करती हैं क्या ये बात? मैं तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसके मार्क्स से काफी असर पड़ता है। मेरे को तो थोड़ा सा नहीं, रुकिए, दिक्कत यहीं पर ही है। आपका बच्चा कितने सालों का है? 13 इयर्स का है। 13 इयर्स का है, ओके। और कौन से क्लास में है? अभी तो 7th में है, तो 8th में चला जाएगा। ओके। आप एक छोटा सा काम कराइए। आप कौन से शहर से हैं? हम दिल्ली से हैं।
ओके न्यू दिल्ली में। ओके, तो दिल्ली में किसी को लोकेट करिए जो कि बच्चों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हो। ओके ओके, तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होगा कि उसके इंटरनल क्वालिटीज क्या है, नेचुरली जो उसके अंदर है वो उभर के आएंगी, और उसके अंदर में क्या क्वालिटीज नहीं है वो भी उभर के आएंगी। तो जो क्वालिटीज नहीं है उस पर माथा मत लगाइए, और जो क्वालिटीज हैं उसके अराउंड उसका डेवलपमेंट आप कैसे कर सकती हैं उस पर फोकस करिए। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि जो अच्छाई है उसको बढ़ाइए और जो अच्छाई नहीं है उसको भूल जाइए। ठीक है, हर बच्चा सेम नहीं हो सकता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। लेकिन सर जैसे अभी इन्होंने बोला कंपैरिजन, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है चीजों से, आसपास से, तो उसको कैसे कि हाँ मेरे को कम मिला, तो ये चीजें कैसे करे? ये तो उनके उसका हो गया कि हाँ उनकी क्वालिटी पता करे, लेकिन जो आजकल बच्चे कंपेयर करते हैं ये चीजें होती है, उसका मोबाइल ऐसा, मेरा मोबाइल ऐसा नहीं, इस चीज को कैसे रोके? हाँ देखिए, मैंने कहा था कि आप कारण ढूंढिए कि वो ऐसा क्यों कंपेयर कर रहा है। कंपेयर कर रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट है, वो इफेक्ट दिख रहा है हमको कि कंपेयर कर रहा है, लेकिन कारण क्या है कंपेयर करने का? कहां पर है वो कारण? उसको खोजिए, और वो कारण जो है वो बीज है, उसको वहां से ठीक करेंगे तो उसका ये जो कंपैरिजन है वो बंद हो जाएगा। आपको हमेशा रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि कहां शुरू हो रहा है ये। तो अगर समझो फ्रेंड सर्कल रहा तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं? बच्चे तोड़ने के लिए तो तैयार नहीं रहते, फ्रेंड सर्कल से ही मेन ज्यादा कारण आता है। नहीं, फ्रेंड सर्कल भी एक इफेक्ट है, तो उसके उस प्रकार के दोस्त क्यों हैं? तो दोस्त बनवाना हमारे हाथ में है। मैं जो आपसे बोल रहा हूं, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, दिख रहा है, तो वो इफेक्ट है। उसके पीछे का क्या कारण है उस पे जाइए। जैसे आपने कहा कि फ्रेंडशिप सर्कल, ठीक है, और फ्रेंडशिप सर्कल क्यों बना वैसा, तो आपको फिर कुछ मिलेगा। तो फिर ये हो सकता है कि शायद आपके बच्चे का नेचर ही ऐसा हो। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जैसा मेरा नेचर होगा वैसे मेरे दोस्त हमारे ऊपर ही आ जाएंगी सब। हाँ, घूम फिर के सब चीजें घर के माहौल, घर पे और हमारे ऊपर आएंगी। हाँ, तो अगर गंगोत्री में आप वहां पे पानी में लाल रंग डाल रही हैं और इलाहाबाद में बोल रही हैं कि लाल पानी आ रहा है, तो आपको काम कहाँ करना है? समझ गई सर, थैंक यू सर। Sanjay ji, Anshuman here. Excellent session and very nice examples, and also the practical aspects of Yoga Sutras. If some course can be developed, and it will be beneficial for many of seekers like us. And also very important topic regarding parenting. And I'm sure if this course can be developed, a lot of people can get benefit from this. Thank you for your efforts. Really appreciate. No, you're welcome, Anshuman. I would suggest that you be part of the team. Let us have a group of advisors who can guide. You see, my wife tells me you're not a good parent. Okay, you have not done parenting. It is only I who have done parenting. So I quietly tell her yes. I am an expert on Patanjali Yoga Sutras. Right? Somebody asked me कि हमारा ये issue है, kindly guide. Then I thought about it, and this thing came. Now, if people like Anshuman, Seema, or one or two more people, a group of 3, if you come together and you say कि this is what we are looking at from a child's perspective and from a parent's perspective. Now, sir, how can we make a course? Then I give you a proposal. Supposing we cover these points, and then you give it a thought and give me a feedback, and then we fine tune it, and then we launch it. So then we will have a sure shot thing which will do well for many people, and it can go international also. It's a very good idea, sir. And also, sir, what you mentioned, that our language should be different than the kids' language. I mean, to make it popular and effective, if in a simplified manner with some practical tools and exercise and some kind of assignments, if these concepts can be instilled,
through some practical exercises, I'm sure it is going to be beneficial. So I'll surely share my feedback to you positively. Yeah, you're welcome. Yeah. तो सीमा जी एक आप रहिएगा उस टीम में और एक अंशुमन जी रहेंगे, ओके? और देखते हैं third we can probably add Nidhi, who initiated the whole thing, and then we can take it off. Make a group now for this WhatsApp group. और ठीक है, बना देते हैं. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Yeah, any other questions or feedback, or can we close now? Yeah, so can we close? Right then, thank you so much. God bless each one of you. Namaskar, and see you on next Sunday. It was a very interesting session for me also. And I'm very happy that something constructive has come out of this. Let us create that course for our children, and let us bring them to a higher level of consciousness. And I'm sure we'll also gain in the process. And the country will also gain. Yeah. Thank you so much. God bless each one of you. See you again on next Sunday.